Hello friends, welcome to EduShine Law, the best platform for studies of law. If you want to join our live session, then you can contact in the number given in the description. Now, this video is the lecture 1 of a series of lecture where we are going to discuss the entire criminal procedure code. Now, in this first lecture, we are going to discuss the basic structure of CRPC. Now, we all know that there are almost 37 chapters. There are almost 37 chapters and almost 484 sections in the entire CRPC. It's a huge act, right? Now, the students always face challenges to remember many of these sections. And if we talk about various law exams like different state judiciaries and other law exams, then the sections and the chapters of CRPC are very important from the point of view of exams. So we are going to learn how to remember all these chapters of the CRPC in this class. And we are going to learn it through understanding the basic structure of CRPC. So let's move ahead and let's see how to remember all these chapters of CRPC. Look, the entire CRPC can be divided into mainly four heads. The entire CRPC can be divided into mainly four heads. Number 1, the instrument of justice. The instruments of criminal justice. Number 2, the provisions related to social interest. The provisions related to social interest. This is number 2. Number 4. Why I am coming directly to number 4 after 2, we'll explain later. Individual interest. Look, CRPC, the basic principle of CRPC or the criminal procedure is based upon a balance. It is based upon a balance between social interest and individual interest. For example, when an accusation takes place of an offense, of a crime, an accused is named in the information, then a social apprehension is generated against that person, right? तो समाज में उसके प्रति जो accused है उसके प्रति एक डर पैदा होता है. Now we all know that criminal offense is about the social interest, right? Why is it being called social interest? Is that it is the criminal offenses are a wrong against the entire society, not against an individual. And that is why in criminal offenses, in the criminal cases, the prosecution is always the state. So the criminal procedure always try to keep balance between social interest and individual interest. And in the CRPC, there are provisions related to balance of between both these things. For example, अगर किसी को कोई एक्यूज्ड को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसकी जो लिबर्टी है वो उनसे छीन लिया जाता है, right? But to arrest, then sometimes arresting an accused becomes necessary to protect the social interest. But accused does not mean guilty. So the principle of our legal system is innocent until proven guilty. तो अभी तक तो वो गिल्टी है नहीं, बट
ड्यू टू दिस एप्रीहेंशन, ड्यू टू दिस सस्पिशन, उसके जो लिबर्टी है उसको उनसे छीन लिया जा रहा है. नाउ इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दैट इज हिज लिबर्टी. सो विथ अरेस्ट देयर इज प्रोविजन ऑफ बेल ऑल्सो. ठीक है, ताकि जिसमें उसको बेल पे उसको लिबर्टी उसको वापस किया जाता है. ठीक है ना. सो दिस बैलेंस इज बीइंग प्रोटेक्टेड इन द एंटायर सीआरपीसी. सो द सोशल इंटरेस्ट has been given under chapter under heading 2, and the individual interest is being given under heading 4. And in the number 3, the main provisions of criminal procedure. Main provisions of criminal procedure. Right. Now, let us see. In the number 1, the instruments of criminal justice. What are the instruments of criminal justice? It is the court and the police. Right. So, if we look at this thing from chapter 2, chapter 1 is about the definition and extent of the criminal procedure code. So from chapter 2 it starts. In the chapter 2, what comes? The criminal codes, different types of criminal codes. Different types of criminal codes, from section 6 to 25A, right? And in chapter 3, the power of these criminal codes. किस कोर्ट्स का क्या कितना पावर है, कितना पनिशमेंट देने की पावर है, ये डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर 3 में, फ्रॉम सेक्शन 26 to 35. ठीक है. And then comes chapter 4. Power of superior police officer. Power of superior police officers. Right. So these three chapters, 2, 3, 4, comes under heading 1, the instruments of criminal justice. Right. So from chapter 2 to 4. Okay. Now comes to our second, social interest. The social interest is from chapter 5 to 7. Social interest is from chapter 5 to 7. Let us see what are these chapters. Chapter 5 is about arrest. The provisions related to arrest. Chapter 6 is about provisions related to summon and warrant. And chapter 7 is related to search and seizure. Right. So all these three chapters are there to protect the social interest, but the provisions of these chapters always take away the individual rights. ठीक है. अरेस्ट में उसकी लिबर्टी छीन जाती है, समन और वारंट किया जाता है तो भी उनकी लिबर्टी उनसे छीना जाता है,
सर्च एंड सीजर में उनकी राइट टू प्राइवेसी उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो these provisions are there. Now to balance between this social interest and individual interest, look, from chapter 33 here, from chapter 33 to 37, ठीक है। chapter 33 is about bail to protect the individual interest. Chapter 34, disposal of property. बहुत बार होता है ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर बहुत सारे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, या फिर समन एंड वारंट के टाइम पे भी अगर समन का आंसर नहीं दिया जाता है, समन वायलेट किया जाता है, तब भी प्रॉपर्टी अटैच किया जाता है। तो बहुत बार जरूरी हो जाता है उस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करे, या फिर अगर उसके बाद कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उसको कैसे डिस्पोज करे, इसके प्रोविजंस इस चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर 35 is about irregular proceeding. The accused or all the individuals has a right of fair trial, ठीक है। so to protect the right to fair trial, proceedings में भी अगर कोई irregularity होता है तो उसको भी चेक करने के लिए चैप्टर 35 बनाया गया है। it is there to protect the individual interest. Chapter 36 is about limitation on cognizance. जितने भी लाइट ऑफेंसेस हैं उस पे कॉग्निजेंस लेने पे भी एक टाइम पे लिमिटेशन बनाया गया है। वैसे तो क्रिमिनल ऑफेंसेस में लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर लाइट ऑफेंसेस में ये सोच करके कि एक्यूज्ड को हैरस ना किया जाए क्रिमिनल प्रोसीजर को मिसयूज करके, इसलिए लिमिट कॉग्निजेंस पे भी एक लिमिटेशन बनाया गया है। एंड चैप्टर 37 इज मिसलेनियस। इस चैप्टर में इस चैप्टर में सेक्शन 482 is important. Section 482 is important under this chapter. This section 482 it talks about the inherent power of high court. तो इस इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को यूज करके क्रिमिनल प्रोसीजर की जो मिसयूज है उसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई अगर फॉल्स एफआईआर अगर किसी के अगेंस्ट लॉन्च किया जाता है तो फॉल्स एफआईआर को भी क्वॉश किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस सेक्शन 482, दैट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। राइट। So these are the chapters in these text. Now let's come to the main provision of criminal procedure. So we can understand that here is up to chapter 7 and there is from 33 to 37. So main provision is from chapter 8 to chapter 32. Right. Now this main provisions is divided into two heads. Is also divided into two heads. One is preventive measure. One is preventive measure and the other one is punitive measure.
प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या हुआ कि अभी तक क्राइम हुआ नहीं है, बट देयर इज ए सस्पिशन दैट अ ऑफेंस मे टेक प्लेस। तो उस केस में स्टेट कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। सो दिस प्रोविजन हैज बीन explained under these several chapters. In under preventive measures, there is chapter 8 to 11. From chapter 8 to 11 is comes under preventive measures, whereas in the punitive measures जहां पे क्राइम ऑफेंस हो गया हुआ रहता है और उसके बाद की जो प्रोसीजर होता है, तो वहां पे वो किस चैप्टर से होता है? फ्रॉम चैप्टर 12 टू चैप्टर 32। ठीक है। So now let us discuss one by one these preventive measures and punitive measures. See, under preventive measures, under preventive measures, chapter 8, chapter 8 is about keeping peace and good behavior. फॉर एग्जाम्पल जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, ठीक है, उनको उनको बॉन्ड साइन करवाया जाता है अंडर दिस मेजर। तो उसमें क्या होता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, वो लोग पहले क्राइम कर चुका होता है और उनका पनिशमेंट भी वो पा चुका होता है। लेकिन उसके बाद जब वो सोसाइटी में इंटीग्रेट होता है तो उसके खिलाफ एक डर रहता है कि ये हो सकता है क्राइम कर सकता है या फिर कोई ऑफेंस फिर दोबारा कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट ये प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है। या फिर कभी ये डर भी रहता है कि कोई पीस और हार्मोनी को डिस्टर्ब करेगा, तो उसके अगेंस्ट भी ये बॉन्ड साइन करवाया जाता है। कीपिंग पीस एंड good behavior. Chapter 9 is about maintenance. Maintenance of wife, children, aged parents, or the dependents. Right. Now the question comes, if is maintenance a criminal offense? Should the provisions of maintenance come under criminal law? But we all know under section 125 of CRPC, the provision of maintenance has been provided in a criminal law, that is CRPC. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मेंटेनेंस जो कि एक सिविल लॉ है, एक सिविल प्रोविजन है, सिविल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ में क्यों है? ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि जो सोशल इम्प्लीकेशन है मेंटेनेंस की, वो देखना पड़ेगा हमें। जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, उसको अगर मेंटेनेंस देना अगर कोई बंद कर देगा, तो वो क्या करेगा? वो समाज में क्राइम करेगा, वो चोरी करेगा, डाका डालेगा। ठीक है। सो देयर इज चांसेस दैट इफ द मेंटेनेंस इज नॉट केप्ट प्रॉपरली, देन द crime rate in the society may increase, and that is why maintenance has been in one hand provided in a criminal law, and also see maintenance has been provided under preventive measures, because to provide maintenance is to prevent further crime in the society, right? So chapter 9 is about maintenance. Chapter 10 is about public order and tranquility. जब समाज में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी कोई कहीं पे कम्युनल राइट फैल जाता है या फिर किसी और तरीके की डिस्टर्बेंसेस फैल जाता है, तो इस प्रोविजंस की खासकर सेक्शन 144, इसको आमतौर पे कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है, सेक्शन 144 को यूज किया जाता है। ठीक है। चैप्टर 11, प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस।
preventive action by police. Right. So all these 4 chapters comes under preventive measures. Okay. Now let's come to the punitive measures. Let's come to the punitive measures. तो प्यूनिटिव मेजर्स मतलब क्राइम हो चुका होता है और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स है, उसके बाद की जो प्रोसेस है। तो अगर क्राइम होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है, जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसी के बेसिस पे क्रिमिनल लॉ के चैप्टर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर्स को भी सजाया गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न हियर, राइट? Once you know the pattern, remembering the chapters of CRPC will not be difficult at all. See, chapter 12, chapter 12 से start होता है. This is from chapter 12 to 32, right? So chapter 12 से start होता है. तो अगर जब भी कहीं पे ऑफेंस होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन को पुलिस को दिया जाएगा, एफआईआर फाइल होगा या फिर जीडी फाइल किया जाएगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस क्या करेगा, द पुलिस विल कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन। सो चैप्टर 12 इज अबाउट इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, राइट? अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करता है, ठीक है। नाउ द पुलिस विल हैव टू सबमिट और डिपॉजिट दोज एविडेंस एंड टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। लेकिन किस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है वो जानने के लिए पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि किस कोर्ट का टेरिटोरी, किस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो केस आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 30। तो अब पुलिस को देखना पड़ेगा कि किस कोर्ट में वो जाए, ठीक है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, राइट? सो आफ्टर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट में गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने गया, तो अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा क्राइम का, ऑफेंस का। सो चैप्टर 14 इज अबाउट कॉग्निजेंस। चैप्टर 15, बहुत बार ऐसा होता है कि एफआईआर, पुलिस एफआईआर नहीं लेता है, या फिर पुलिस के पास लोग एफआईआर दर्ज करने के लिए जाता भी नहीं है, वो डायरेक्टली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल करता है। तो चैप्टर 15 इज गिव्स द प्रोविजन अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंप्लेन। तो बहुत बार कंप्लेन के सहारे भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब क्या होगा, जब कॉग्निजेंस ले लेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस होगा, जिसमें जो एक्यूज्ड है उसको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देगा, और एक्यूज्ड को बताया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ अब प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा रहा है। इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब भी स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्या होगा, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेमिंग होगा, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा कि किस किस सेक्शन के अंदर उनको, उनके ट्रायल चलेगा। दैट विल बी, ये चार्ज फ्रेमिंग जो होगा वो कोर्ट में होगा। अब ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, चार्ज फ्रेमिंग, राइट? चार्ज फ्रेमिंग से शुरू होता है अब ट्रायल कोर्ट में, ठीक है।
तो चार्ज फ्रेमिंग हो गया। अब देखो चैप्टर 18 ट्रायल शुरू हो गया। तो डिफरेंट कोर्ट्स के जो ट्रायल के प्रोसीजर है वो एक के बाद एक मेंशन किया गया है। सबसे पहले ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। चैप्टर 19 ट्रायल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन वारंट केस। ट्रायल इन वारंट केस। चैप्टर 20 ट्रायल इन समन केस। एंड चैप्टर 21 summary trial. Right. Now, after amendment, another chapter has been introduced, chapter 21A, which talks about plea bargaining. This is a new concept. This is a new concept that has been introduced in the criminal procedure. Plea bargaining. ठीक है. Chapter 22 talks about if some person is detained in prison. ठीक है, ट्रायल के तौर पे दौरान वो उसको प्रिजन में डिटेन किया जा सकता है. ठीक है, तो उसको कैसे प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो अटेंडेंस ऑफ डिटेन. राइट. चैप्टर 23. अब आते हैं कोर्ट में. कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. ट्रायल के दौरान क्या चलता है, एविडेंस को एडमिट किया जाता है. तो एविडेंस को किस तरीके से एडमिट किया जाएगा उसके प्रोविजंस चैप्टर 23 में. प्रोविजंस रिलेटेड टू एविडेंस. चैप्टर 24. ट्रायल के दौरान कोर्ट को बहुत सारे चीजें फॉलो करना होता है, बहुत सारे रूल्स फॉलो करना होता है. ठीक है, सो दैट हैज बीन गिवन अंडर चैप्टर 24. जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रायल. जनरल प्रोविजंस related to trial. Right. This is up to chapter 24. Now let's come to chapter 25. Chapter 25. The provisions when the accused is of unsound mind. Provisions related to unsound mind accused. Right. Chapter 26 is about administration of justice. Chapter 27.
अब ट्रायल के बाद क्या होगा, ये सारे तो ट्रायल हो गया, ट्रायल के बाद उसके जजमेंट आएगा। सो चैप्टर 27 इज अबाउट जजमेंट। ठीक है। चैप्टर 28, अगर सेशन कोर्ट में किसी को जजमेंट में डेथ सेंटेंस मिलता है तो क्या करना पड़ता है, हाई कोर्ट से उसको कंफर्म कराना पड़ता है। सो दैट इज इन चैप्टर 28, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय हाई कोर्ट। चैप्टर 29, लोअर कोर्ट में जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील होता है। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 29, अपील। बहुत बार, बहुत बार अपील नहीं किया जाता है, रिव्यू पिटिशन भी फाइल किया जाता है। तो दैट इज चैप्टर 33, रेफरेंस एंड रिवीजन। चैप्टर 33 31 is about ट्रांसफर ऑफ केसेस। बहुत बार एक कोर्ट से, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर भी किया जाता है, जरूरी होता है। एंड फाइनली चैप्टर 32, सब कुछ जब हो जाता है उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूशन। So this is from chapter 12 to chapter 32 that has been given as the punitive measures under CRPC. And this is the general basic structure of the entire CRPC.